श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। Now we will chant 3 times Om mantra. So please you also. Now we will chant Gayatri mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Thank you very much. I call now the guest speaker, Vibha Kale, and I'm really grateful to her. She has taken this challenge on a very short notice, and you can see how good speaker she is. I leave it to you to judge now. Okay, thank you. मैं भी शुरुआत तो गायत्री मंत्र से ही करना चाहती थी। वो आचार्य जी ने बोल भी दिया, आपसे बुलवा भी लिया। तो अब ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नयासुः। So किरण जी ने बहुत कुछ कह दिया, and I hope सरस्वती माता की मुझ पर कृपा रहेगी और I will be able to do justice whatever is expected of me. तो सबसे पहले तो I would like to welcome you all who are here and also all the people who are watching on Facebook or YouTube, because these days due to Corona people don't come out, and even if they can come out they have become a bit lazy. It's more convenient to sit at home and watch on their Facebooks rather than make a journey and come here, but that's their prerogative. So all I want to say is, as everybody has told, that today the speaker is Vibha Kale. I wouldn't say I'm going to give a speech, I would rather say I'm going to give you a talk, right? Because we all are at equal level, and there are, as the topic says, role of women. First of all, I want to say my name is Vibha Kale. That I have written is Vibha. It's BH, joint sound of bha. So Vibha like in Bharat, Bhavi, Bhabhi, right? And Kale is an English surname, and many people surmise it that it is Kal or it is Kale. So it's not Kal, it's not Kale, it's Kale. Now, what is the big deal? It doesn't take any mukat out of my aura, but it's instilled in me by my parents that try to learn the correct thing the first time. Otherwise, you become so used to of doing or speaking the wrong things, and it's extremely difficult to unlearn what you have learned before and then relearn the correct thing. Even in my own life, the people thinking they are elders, I didn't
कट देम शॉर्ट एंड डिड टोका नहीं मैंने कि मेरा नाम बेवा है, तो उनमें से कोई मुझे बीबा कह देता है, कोई बीवा कह देता है। खुदा का शुक्र है कि बेवा नहीं कह देते। Yeah, so that's why, and why I am reiterating it, you will come to know of it when we do the talk. And the next thing is that, as I said before, that I would like to extend my thanks and gratitude to Mrs. Atri, Pandit ji, President Shri Atul Agarwal ji, and all the committee members and the people who are watching on Facebook. And I'm sure that Saraswati Ma will be kind to me, that I will be able to do the justice to the faith put in me by Mrs. Kiran Atri ji. And today's topic is, as you can see, role of women in the Hindu family. Now, why not just say role of women? Why to say it in Hindu family? Yeah. Yeah. But family is, because family is the microcosm society. Societies are built by the families. This modern thing of living in things is disastrous. It's not going to take individuals or societies or countries anywhere. It will only demean the importance of family, and it will only take us down to the hell. We always say paradise is above. So if we are going down, then we can break the families. So that's the importance of this topic. Then we say, why Hindu? The role of woman in the Hindu family. And first question that comes to mind is, why Hindu? Why not just role of woman in family? Because our culture is Sanatan, right from the beginning. It's not something new, जो 1400 साल पहले शुरू हुआ मोहम्मद के साथ या 2000 साल पहले हुआ. This is Sanatan. It's right from the beginning of the Srishti, and that Hindu is an old age culture and civilization. It's not that sabhyachar hame अंग्रेजों ने सिखाया. We had a very, very developed civilization, and our culture is right from the beginning, and that is why India was called Vishwaguru. And why it was called Vishwaguru? Because since the beginning of the creation, now have you heard the name of Manu? Many people have heard Manu Samriti. ज्यादा लोग गालियां निकालने वाले, पर जो गालियां निकालते हैं उन्होंने मनु स्मृति पढ़ना क्या, जो ओरिजिनल बुक है उसको देखा भी नहीं है. They have only seen in the bookshops the distorted version of Manu Smriti, in which there are so many things added to demean our culture. So the Manu Smriti is believed to be the word of Brahma. It was not written by a man named Manu. क्योंकि जिन्होंने अयोध्या का नक्शा बनाया था उनको भी मनु कहते हैं, जो सर्वोच्च मानव होता है. जैसे पीठ पे जो भी बोलता है उसको व्यास कहते हैं, पर वो व्यास ऋषि नहीं होता. इट्स अ डिग्री, इट्स एन अचीवमेंट, एंड दैट्स व्हाई मनु स्मृति is not written by a man, and it's not named after the name of that person. The actual author of this compilation used the eponym. Eponym means अपना नाम दिया या book को title दिया, Manu, which has led to the text to be associated by the Hindus with the first human being and the first king. So this book, Manu Smriti, is like the first constitution. ये मानव जाति का संविधान है. That how we should live. What is our dharma? Dharma not religion. Dharma not kriya kand, puja path. Dharma is your duty, your innate character. जैसे पानी का innate character है कि उसने शीतल ही रहना है, उबाल के भी रख दोगे तो शीतल हो जाएगा, नीचे को ही जाना है. अग्नि का innate character है कि उसने ऊपर को जाना है, उसने heat and light देनी है. ठीक है ना? So what is the innate character of a human being?
उसको कैसे हमने परफॉर्म करना है, दैट हैज बीन रिटन इन द मनुस्मृति टू गाइड द पीपल। हमारा बच्चा कहीं जाता है तो हम उसको कहते हैं पानी रख ले, खाने को कुछ रख लिया, कंबल ले लिया। तो उस भगवान ने जो इतना सर्वशक्तिमान है, जब उसने सृष्टि बनाई तो क्या उसने मनुष्य को गाइड करने के लिए, आप एक मशीन खरीदो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो परमात्मा ने सृष्टि पैदा की तो उसने क्या इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी थी? सो द मनुस्मृति इज दैट compilation of संविधान. It guides the individual of their dharma. It's the most authoritative statement of आचरण, कि हमने सोचना कैसे है, हमने करना कैसे है, और that is where the role comes, कि हमारे रोल में क्या क्या होना चाहिए और उसको कैसे कैसे करना चाहिए. That is the main gist of the title of today's talk. तो रोल में फिर क्या आता है? आप किसको कौन सा रोल देते हो? जिसको आटा गूंदना नहीं आता, आप उसको कुक का रोल तो नहीं दोगे. So if that person has the capability, then only you will give that role. That will be his duty to perform that role. Or if you give somebody a role of which they don't have the capability, then they should have the intention to learn. Some things we learn on the job. ठीक है ना, पहले से नहीं आती. But if you have the intention, तो आपकी नीयत हो कि हमने सीखना है, then you learn. और उसके साथ ही along with intention, you should have not only the intention कि कर लिया out loud. No, you should have the intention to learn the correct quality. And that's what I was saying. If you learn correctly the first hand from the word go, then there is no way you can make any mistake. And then you can perform whatever duty yours is in your role. You can do justice to your role. ठीक है, समझ आ रहा है ना? कोई जरूरी तो नहीं है पंजाबी में करो. So then when you have overcome all those requirements, then comes the performance. So when you perform your role with good intentions, with sincerity, with dexterity, पूरे अपने क्षमता के अनुसार ठीक अपना रोल परफॉर्म करते हो. आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि सुन रहे हो कि देख रहे हो? आप फोन करके रख लीजिए प्लीज. तो परफॉर्मेंस जब करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? देन इट गिव्स यू द अथॉरिटी. नाउ आई एम स्पीकिंग हियर, आई एम डूइंग दैट रोल, एंड दैट रोल, माय परफॉर्मेंस गिव्स मी द अथॉरिटी टू आस्क यू पीपल टू लिसन टू मी केयरफुली विद अटेंशन. इफ आई वाज वन ऑफ यू, आई कुड नॉट से ये करो वो करो, बट my role gives me the authority to expect few things from the audience, right? And that authority gives the status. Like when she is teaching me in knitting class, she has the status of my teacher, my guru. Now I have the status of a speaker and she is there as an audience, right? So the status and authority go side by side. What it brings in result? It gives you love. It gives you respect. So that comes all under the role. So role of woman in the Hindu family. So why role of woman? मानव जाति तो सबके अलग अलग है, किन्नर भी हैं, औरत भी है, आदमी भी है. उनकी क्यों नहीं हमने रोल की बात की? Why we talk about women? Because our scriptures say माता जननी ब्रह्मा अस्ति. जो माँ है, जो जन्म देती है, वो ब्रह्म के समान है. जैसे ब्रह्म ने सारी सृष्टि को जन्म दिया है, सृष्टि का पालन पोषण करता है, उसी तरह माता बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसको हर तरह की ट्रेनिंग देने की कोशिश करती है टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर लाइफ इन द आउटसाइड वर्ल्ड. तो ब्रह्मा ने भी हमें मनुस्मृति भी दी, संविधान भी दिया, सब चीजें हमें प्रोवाइड की. तो माता जो है, शी इज लाइक ए ब्रह्मा. और माता को प्रथमाचार्य भी कहा गया है. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड. दे से द पेड शिक्षक, जो जैसे आजकल स्कूल टीचर होते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, दे आर रिस्पेक्टेबल, बट इन हायरार्की दे आर एट द लोअर लेवल. आफ्टर दैट इज आचार्य गुरु, योर मेंटर, हु इज नॉट लुकिंग फॉर द पे फ्रॉम यू. He also wants you to excel him और हर. आपका गुरु तब ज्यादा खुश होता है जब आप उससे भी ज्यादा
सीख जाते हो या उसको चैलेंज कर जाते हो। इसलिए उन गुरु का महत्व शिक्षक से 100 गुना ज्यादा है, और शिक्षक से भी ज्यादा माता का। अगर ये 10 गुना है, ये 100 है, तो ये 1000 है। तो माता 100 आचार्यों से भी बढ़कर है, क्योंकि माता की गोद में जब वो माता बच्चे को गोद में लेके कहती है मेरा राजा बेटा, शी इंस्टिल द फर्स्ट इमोशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। आप बच्चे को पैदा होते ही कहते एक किथों आ मरिया, तो उसमें कभी भी दैट चाइल्ड विल ऑलवेज हैव लो सेल्फ एस्टीम। आजकल क्या होता है, हमारे 16 संस्कार क्यों है कि बच्चा जब पैदा करना है, प्लान करना है, बिकॉज यू आर रेडी टू वेलकम द चाइल्ड, दैट इज वेयर द फर्स्ट संस्कार कम्स। बट आजकल शराब पी नशे में बच्चा बन गया, इट्स नॉट लाइक्ड बाय पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला जाता है, माँ को बोझ लगता है, दैट्स वाई द सोसाइटी इज गोइंग downhill, right? So that's why the importance of women to make the child, make the family, make the society. So all these things I wanted to explain just when I looked at the title. And now what I would say, what's the role of woman? What's the importance in Hindu family? We have discussed it. The next thing is what the Manu Samriti says about the role, about the duties, capabilities and qualities of a woman. There is a shlok which says, Karyashu dasi, karneshu mantri, bhojeshu mata, rogeshu vaidya, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, धर्म अनुकूला, क्षम्या धारित्री, कुल धर्मा पत्नी, सत्कर्मा नारी. So all these qualities she should have. So this denotes the different roles. As I said, roles are interchangeable with authority and status. So when she has that role, what sort of quality she should have in her personality? When it says Karyashu dasi, to perform the household chores, she is like a dasi. Servant है, उसने सारे काम करने हैं. Even if she has other servants, other helpers, she has to administer them. उनसे काम करवाना भी एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना? तो वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, वो गुण औरत में, घर की औरत में होना चाहिए कि वो काम ये ना कहे बातें खप गई सारा दिन कर करके. तो जैसे मेरा भाई कहा करता था, कौन सा मेरी माँ की टांगे दबा रही है, अपने बच्चे ही पाल रही है. मेरी बहनें या मेरी माँ तो नहीं यहाँ बैठी, अपने बच्चे पाल रही है, अपना घर संभाल रही है, तो सुना किसको रही है? सो नौकराओं लगे रही था. तो रानी भी तो तू ही है ना घर की. तो मैं तो उनको कई बार कहती थी, भाभी आप ये गाना गाया करो, पिया का घर है ये, रानी हूँ मैं, रानी हूँ घर की, एंड दैट विल चेंज योर थॉट प्रोसेस. तो घर के काम के लिए दासी भी है, पर उसी घर की वो रानी भी है. जो औरत पति को गुलाम बना के रखना चाहती है, वो गुलाम की गुलाम बन जाती है, और जो औरत पति को राजा बना के रखती है, वो ऑटोमेटिकली रानी बन जाती है घर की. Isn't it? So those thoughts should go in her mind. And the second thing is कर्णेषु मंत्री. कान से उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, उससे मंत्र ना करनी चाहिए, उससे सलाह करनी चाहिए. तो सलाह कौन देगा जो कहे मैं तो हाउस वाइफ है, मैंने तो कुछ पता नहीं. नो, she should be aware what's happening with her children, what's happening with them in the school, what sort of job my husband is in, what's happening all around in the state. Because कई लोग कहते हैं मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है. अरे राजनीति से ही तो आपकी स्टेट और आपका घर चल रहा है. अगर राजनीति धर्म के अनुसार नहीं चल रही तो वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में हो रहा है. फिर ना आपके महल रहेंगे, ना आपकी जॉब्स रहेंगी, ना आपके लॉकर में पैसे रहेंगे. सो द लेडी शुड बी अवेयर ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑल अराउंड हर, एंड शी शुड बी केपेबल ऑफ गिविंग एडवाइस ऑन दोज टॉपिक्स. सो उसकी बात सिर्फ ये नहीं कि वो सलाह दे दे, कर्णेषु उसकी सलाह को कान धर के सुनना पड़ेगा. सो दैट इज हर रोल, दैट्स हर अथॉरिटी. Then they say भोजेषु माता. जब किसी को खाना खिलाने बैठे तो वो माँ के समान है.
चाहे वो नौकर को खाना खिला रही है, चाहे अतिथि को खिला रही है, रिश्तेदार को खिला रही है, पति को या अपने बच्चे को। तो देयर इज अ स्मॉल स्टोरी गोइंग अराउंड इन व्हाट्सएप ऑल्सो। एक बच्चा कहता है कि मेरी माँ कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर वो तो पूरी अनपढ़ है। मैं उसको कहती हूँ पेट भर गया, रोटी नहीं चाहिए, तो वो कहती है आधी ले ले। मैं कहता हूँ आधी दे दो, तो वो मेरी थाली में 2 रख देती है, उसको गिनती नहीं आती। सो मदर शुड इंसिस्ट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड और द पर्सन हु इज ईटिंग, देयर हेल्थ एंड देयर नीड्स। तो उसमें ये नहीं कि कोई नौकर है तो उसको दुत्कार के खिलानी है, कोई सास या कोई और आ गया तो उसको माथे पे चूड़ियाँ डाल के चलानी है। नहीं, जब आप एक बार भोजन के रसोई घर में हो, खिलाने की आपकी ड्यूटी लगी है, तो आप सबके लिए माँ के समान हो। दैट शुड बी द क्वालिटी शी शुड ट्राई टू डेवलप। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ये परवाह नहीं होती, बट बस दैट्स व्हाट आई से, इसी को कहते हैं गृहस्थी। 20-21 साल की लड़की कॉलेज से आती है, इधर किताब फेंक दी, इधर कुछ फेंक दी है। गृहस्थी होती है तो दूसरों की उठा उठा के साफ जगह रखती रहती है। सो दैट शी हैज टू डेवलप, एज वी सेड, they should have the intention to develop or learn those qualities. Then it says रोगेशु वैद्य। जब घर में किसी को रोग हो जाए तो she should be like a homeopathy doctor। पेट दर्द होती है, माँ कहती नमक न अजवाइन खा ला। गैस होती है, मैं तुम्हें सौंफ वाली या अदरक वाली चाय बना देती हूँ। सिर दर्द होती है, ला सिर मसाज कर दूँ। पैर पे कुछ हो गया, नमक वाले पानी से डकोर कर देती हूँ। So all those qualities she should have। ये नहीं कि वो डिग्री ले ली एक BA की और इधर से इधर पता नहीं कि नमक और किसी चीनी में क्या फर्क है। So घर में किसी को रोग होता है तो she should be like a homeopathy doctor। She should have those qualities because that is her role, that's her duty, that's her authority। कोई और कहे नहीं 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 गोली खा लो, कहेगी क्यों गोली का जहर केमिकल मुंह पाना। शी हैज द अथॉरिटी टू से नो एंड शी विल से नहीं, मैं तुझे अदरक की चाय देती हूँ। यू एग्री सो फार? ओके, देन इट सेज शयनेषु रंभा। इन द बेडरूम शी इज लाइक अ रंभा। रंभा इज अप्सरा। अप्सरा ये नहीं सिर्फ ब्यूटी में, रंभा अप्सरा मीन्स शी हैज द हेवनली ब्यूटी। Heavenly beings, not like the modern day Ardhanagan half-naked models, but a celestial beauty. So from where comes the celestial beauty? From the naturalness. कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, and she has all the respect for the needs of her husband. So who can please and satisfy her husband? That is what her role is. Rambha. So she is like a celestial beauty. And next word is रूपेशु लक्ष्मी। अब हमने एक तरफ तो उसको रंभा की तरह सुंदर कह दिया या उसका रोल बता दिया, फिर रूपेशु लक्ष्मी हम क्यों कह रहे हैं? तो उसका जो रूप है वो लक्ष्मी की तरह होना चाहिए। आप लक्ष्मी माँ की तस्वीर देखते हैं, चाहे वो किसी आर्टिस्ट की कल्पना ही है, बट ही हैज ट्राइड टू पुट द नैसर्गिक क्वालिटीज जो होती हैं, जो इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं देवियों की, वो उसमें डालने की कोशिश की है। एक हाथ में वेद है, एक हाथ में कॉइन्स है, कमल है। सो व्हाट शी शुड ट्राई टू इम्बाइब इन पर्सनैलिटी इज द नेचुरल इनबिल्ट ब्यूटी, लाइक द करेंसी। लक्ष्मी क्या है? पैसे को हम मानते हैं ना, तो करेंसी जो है ऑफ एनी कंट्री, मे इट बी ए पेपर नोट, may it be a coin made of metal which is slightly expensive than the paper note, but the value is the same। 5 पाउंड का सिक्का हो वो भी 5 पाउंड का है, और 5 पाउंड का कागज का नोट हो वो भी 5 पाउंड का है। It doesn't matter, it's a paper note or it's a coin because it has the intrinsic value। So in the same way, the woman of the house, woman of the family should have the inbuilt quality ऑफ बजटिंग। उसको पता हो कि कम से कम में मैंने कैसे ज्यादा से ज्यादा बरकत लेके आनी है। हर ब्यूटी लाइज इन हर क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग द बजट। इफ हस्बैंड इज द प्रोवाइडर, हम कहते हैं ना पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर इसलिए नहीं कि हम उसके पैर की जूती हैं,
पति परमेश्वर इसलिए है कि जैसे परमेश्वर हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, ऐसे पति भी हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है कि वो हमारी जरूरतें, फैमिली की जरूरतें पूरी कर सके। ठीक है ना? अगर पति परमेश्वर है जो प्रोवाइड करता है, तो यू आर लक्ष्मी, यू आर द मैनेजर हु मैनेजेस दैट मनी, राइट? सो शी इज मैनेजर, हेंस रूपेशु लक्ष्मी, कि वो जो उसकी इंट्रिंसिक ब्यूटी है वो लक्ष्मी की तरह होनी चाहिए। Who has knowledge with Vedas in her hand, who is soft and pure like the lotus flowers, and who can manage money like the coins in Lakshmi Ma's hands. So excellent mannerism she should have. That's why she is called Rupeshu Lakshmi. That is, now next word is very important. आप जिसी तरह वो कहते हैं ना कि पैसा तो कंजरियां को भी मिलता है, धर्म अनुकूल जो भी काम वो करे धर्म अनुकूल करे। Who knows what her appropriate duties are, but the woman of the house should know which path, which route is the correct one to follow in her actions and decisions. धर्म के अनुसार चलने वाली देवर, ससुर, पति, रिश्तेदार सबके संबंधों में डिफरेंशिएट कर सके, किसके साथ अप्रोप्रिएट व्यवहार कैसे करना है। जो मजाक आप देवर के साथ कर सकते हो वो आप जेठ या ससुर के साथ नहीं कर सकते। तो जो धर्म अनुकूल व्यवहार करने की जिसको समझ है वो ही नारी कुल धर्मा कुल नारी है। सो रिश्तेदार के संबंधों में डिफरेंशिएट करे, अप्रोप्रिएट व्यवहार करे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इन दैट श्लोक वाज क्षम्या धरित्री, क्षमा करने में वो धरती की तरह हो। She should be as forgiving in the nature, in her nature, as our Dharti Ma is. We walk on it, we kick it, we dig it. All the garbage is dumped on the earth or sometimes inside it. We use it, abuse it. But what our Dharti Mata does, she is so gracious. She forgives us and carries on giving us. She gives its bounties to the humankind. She gives water, she gives production in the fields. She grows trees in her chest to give us pure air and shade. On top of that, it gives us all the minerals, the gold, right? And all the precious metals and whatnot. So like that, बच्चा रूड हो, देवरानी जेठानी कुछ गलत बात कर दे, कुछ भी हो, औरत को धरती की तरह क्षमा करने वाली होनी चाहिए। और दैट इज वाई इन आवर कल्चर देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स, क्योंकि इतनी ग्रेशियस होती है हिंदू फैमिली की वुमेन कि वो ये सारी चीजें माफ कर देती है। नाउ देयर कम्स अ ट्विस्ट। इससे पहले जो प्रीफिक्स लगा है वर्ड का धर्म अनुकूला, जो कुछ गलतियां होती हैं वो आप किसी एक्सट्रीम तक चले जाओ, बच्चा जितना भी बदतमीज हो जाए आप उसको माफ करते चले जाते हो क्योंकि वो तब तक धर्म के दायरे में रहता है, राइट? पर जब the woman of the house keeps the same attitude of forgiving, तो फिर उसकी लव एंड रिस्पेक्ट कहाँ गई, राइट? जेन्युइन क्वेश्चन है ना। तो नाउ if she keeps giving, then we have to think of her own self-respect. She should not be trodden upon all the time. Having said that, don't forget the prefix that is dharmankula. If the mistake is innocent, it's worth forgiving. But if it is not dharmankula, if the rudeness, negligence or misbehavior of the other person is atikraman, अति तक भी आप माफ कर सकते हो, पर जब वो अति की सीमा पार हो जाती है तो तब वो औरत क्या करती है। लाइक कुंती ने के साथ बहुत कुछ हुआ, सब कुछ उसने माफ किया, पर जो द्रौपदी के साथ हुआ चीर हरण की घटना से, दैट वाज अतिक्रमण, वो माफ नहीं किया जा सकता। जब वो सिचुएशन आती है तो औरत को फिर दुर्गा की तरह फरसा पकड़ना पड़ता है, तब वो विनाश का कारण बनती है। She cannot compromise with her self-respect and her status, right?
So that is where you should be able to be aware where to draw the line. The female of the house has the right to teach an unforgettable lesson, कि वो फिर 10 जन्मों तक भूल ना पाए कि मैंने इसके साथ ये हरकत की थी। हम जो भारत में अहिंसा का रोना रोते हैं ना, ये हमारी जो कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हमने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भी एक लाइन पकड़ ली, अहिंसा परमो धर्मा उसकी भी एक लाइन पकड़ ली, और ये उसके आगे जो कहा है उसको भी तो देखो, कंप्लीशन तो देखो। तो कंप्लीशन ये जो है, आई विल टॉक अबाउट इट। तो जैसे द्रौपदी के चीरहरण चाहे चचेरे भाई ही क्यों ना हो, वो विनाश का कारण बनती है, बिकॉज दे हैव डन द अतिक्रमण, दे हैव क्रॉस द लाइन वेयर दे कुड बी फॉरगिवन। तो औरत पैदल नहीं ना, कुंती माफ कर दी थी तो गिज गए। सो नेक्स्ट इज कुल धर्म, कुल के धर्म को निभाने वाली। वाल्मीकि जी की रामायण में एक प्रसंग आता है जब श्री राम wants to go to वनवास and then Sita ji is adamant to accompany him। तो माता कौशल्या, शायद तुलसीदास जी की रामायण में है या नहीं मुझे नहीं पता, वो बचपन में सुनी थी कथा में, पर वाल्मीकि की रामायण I do study and interpret, so that's why I have taken all the examples from there। तो माता कौशल्या कहती हैं कि तुम्हारे जाने से मेरी दिनचर्या सुन्नी हो जाएगी, सुन्नापन आ जाएगा। So you are adamant to accompany Sri Ram to the forest, and Mata Kaushalya says, if you also leave me, my life will become listless, कुछ भी नहीं रह जाएगा। But if you accompany him, that fact that you are accompanying my son gives me the solace, मुझे एक शांति मिलती है, because I know that whatever I have told you about the traditions and values of Raghuvansh, मैंने बातों बातों में तुम्हें जो रघुवंश के मूल्यों और रीति रिवाजों के बारे में बताया है, मुझे पता है तुम उनका पालन करोगी, और समवेयर इम्परसेप्टिबली इन द बैकग्राउंड दैट विल सपोर्ट माय सन, वो श्री राम को भी संबल देगा। और सीता जी क्या जवाब देती हैं, माय ओन मदर सुनैना had also taught me to assimilate the values and traditions of in-laws। मेरी माँ ने, सुनैना ने भी मुझे यही समझाया था कि अपने ससुराल के मूल्यों और उनके रीति रिवाजों को धारण कर लेना। तो शिक्षा भी मायके से भी वही मिलती थी कि तुमने ससुराल में जाके असिमिलेट होना है, वहाँ अपने कोई अलग से शेखी नहीं मारनी, मेरे पेके है तो मेरे मायके हो। You are part of that family now, so you have to assimilate and carry forward those traditions. Hence, whatever you have told me, Sita ji says to Mata Kaushalya, कि आपने जो भी मुझे बताया है, oh mother, I have imbibed them, मैंने उसको अपनी आत्मा में पिरो लिया है, आत्मसात कर लिया। ये नहीं कि इधर से सुना, हाँ मैंने पता है, फिर करना वही परनाला उठे। ठीक है, तो सीता जी also assures Mata Kaushalya कि मेरी माता सुनैना ने भी मुझे यही सिखाया था कि मैं ससुराल के रीति रिवाज और क्रियाकलापों का ही अनुसरण करूं, और मैंने रघुकुल की सारी रीतियों और मूल्यों को अपनी आत्मा में आत्मसात कर लिया है। मैं यथाशक्ति तन मन से उसका पालन करती रहूंगी, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटीज और रोल्स डिक्टेटेड ऑफ द फीमेल ऑफ द बहू ऑफ द फैमिली। नोट की गुणगान करते रहो एक साइड पे। तो last but not least, the most important guns is all these things which are in that woman, and if they are not, she should have the intention to learn about them with full appropriateness, correctness, and imbibe them and perform them। आप सब कुछ सीख लो, करो ना, कोई फायदा नहीं। So performance is directly related to your role। So if you perform that, then what you get authority, you get status, you get love, and you get respect। And that is why Upanishad says what I was saying in the beginning, ऐसे सत्य कर्म करने वाली नारी के लिए उपनिषद कहते हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते वस्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, पूजा मीन सम्मान होता है, पूजा नहीं ये नहीं कि थाली में लेके तो आरती उतारनी शुरू कर दो, उसका सम्मान जहाँ होता है वहाँ देवता बसते हैं।
हर चीज मिलती है, देवता देने वाला होता है ना, जो हर चीज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमें मिलते हैं, वहां खुशी होती है। और दूसरी लाइन क्या है, व्हिच आई वाज मेंशनिंग, यत्र ता अस्तु ना पूज्यन्ते, जहां ता ऐसी स्त्री की पूजा नहीं होती, स्त्री में जिसमें ये सारे रोल करने की, परफॉर्मेंस करने की कैपेबिलिटी है, अगर उसकी वहां नहीं पूजा होती, सम्मान नहीं होता, सर्व अस्त, सब कुछ अस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तत्र तत्र फला क्रिया, आप बाहर दान देते रहो, लोगों बड़े हंस हंस के खुशी से बातें करते रहो, घर में अगर उस स्त्री का सम्मान नहीं करते, ऐसा रोल परफॉर्म करने वाली स्त्री की इज्जत नहीं करते, तो जो कुछ भी आपके अच्छे कर्म हैं उनका फल अस्त हो जाता है। यू कांट से मैंने वहां इतना दान दिया था तो मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारी वाइफ खुश नहीं है, तुम्हारी बेटी खुश नहीं है, तुम्हारी माँ खुश नहीं है, इसलिए नहीं मिली। So you have to keep both the things in mind. In contrast, in spite of possessing all the above mentioned qualities, such ladies are still not respected from there. All the happiness leaves forever. अतः it is also said, बहु कल्याणम इप्सु भी पितृ भी मातृ भी पति भी देवरई। देवर का मतलब यही नहीं कि पति का छोटा भाई, देवरई का मतलब जो ससुराल के रिश्तेदार होते हैं, बिकॉज संस्कृत इज very complex language in a way, but very clear to me. एता पूजा भूष्यता नश्य, उसकी पूजा करो, उसका सम्मान करो, और जहां तक हो सके उसको आभूषण दो, क्योंकि आपकी बहू आपके गहने पहन के निकलती है तो आपके कुल की ज्यादा इज्जत है। सास ने यहाँ तक सोने की चूड़ियां पहनी हो और बहू ने एक घड़ी लगाई हो तो दुनिया बातें करेगी। तो ये नहीं कि उसको सोने से ही प्यार हो, पर जो भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आप कर सकते हो, उसको आभूषण दो। जरूरत तो आप पूरी कर रहे हो, उसको खाना भी दे रहे हो, कपड़े भी दे रहे हो, बिस्तर भी दे रहे हो, छत भी दे रहे हो, पर उसके अलावा जैसे जिसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा बूस्ट देना, तो उसका आभूषणों से भी उसका स्वागत करो। दैट इज व्हाट आवर संविधान, आवर मनुस्मृति डिक्टेट्स अस टू डू। सो ऑल द पीपल विशिंग टू हैव द प्रॉस्पेरिटी शुड ओबे दीज इंस्ट्रक्शंस। If the woman is performing her role with sincerity, I am on the end now, so don't worry, with dexterity, efficiency, accuracy, as a result, she deserves all the respect, and the scriptures say she should be cherished, respected, and protected under all circumstances. Now, this is the most important word that has come in the end. She should be protected. हम कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। आप अपने हीरो के गहनों को कितना टेबल पे छोड़ के जाते हो, कीमती है ना, संभाल के रखते हो। तो घर की औरत, घर की इज्जत है, घर की शोभा है, आभूषण है, तो उसको आप प्रोटेक्ट करोगे, उसको आप रात के 12 बजे नहीं निकलने दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुलाम बन गई है, इसका मतलब है कि यू चेरिश हर, यू गिव हर इम्पोर्टेंस एंड यू आर रेडी टू प्रोटेक्ट हर इन एवरी वे। तो उसको संभाल के रखिए। तो इन द हिंदू सोसाइटी the female, I'll come here again, the female has always been respected, loved and worshipped. तभी तो हम इतनी देवियों की भी पूजा करते हैं। They have always been honored with the highest status of Devi. This is Mata da Mandir. We have Saraswati Devi, we have other Devis, Durga, लक्ष्मी जी, सरस्वती। नवरात्रे हैं, 9 देवियों की पूजा होगी, 9 रूपों की पूजा होगी। सो इन आवर कल्चर, इन सनातन हिंदू फैमिली, वुमन हैज ऑलवेज बीन रिवर्ड, cherished, respected, and goddess, she is revered as goddess, and goddess is who provides you with the physical as well as the spiritual solace. बच्चा आता है, भाग के माँ की गोदी में आ जाता है, कुछ नहीं बोलता, पर उसको वो सलेस मिलती है विदाउट एनी वर्ड्स। सो सच हैव बीन द ट्रेडिशंस, बट डू यू थिंक द मैन ऑफ टुडे इज equipped with those kind of characteristics to give the kind of respect and protection that has been told in Manusmriti? No. When we listen to the incidents of mistreatment and disrespect of women, one shudders. Why? Because
those things have been lost somewhere. And why they have been lost from our culture? Because culture is shaped by the tradition on one hand and by the historical influences. Sadly, the historical influences on India have been such, भारत पे हमले होते गए, गुलामी आती गई, सब ने अपना अपना नैरेटिव दे दिया. बाल प्रथा नहीं थी हमारे कल्चर में, वो मुसलमानों के साथ आई क्योंकि वो घोड़े पे चढ़े चढ़े किडनैप करके ले जाते थे. घूंघट नहीं था, आप जितने भी पुराने स्क्रिप्चर देखो, घूंघट नहीं था. घूंघट आया कि ना बाल प्रथा हुई तो द साइड एडेज वाज कि अगर लड़की 12 साल की उम्र में शादी हो गई तो ससुर भी 34-35 का होगा. व्हाट टू से ऑफ आउटसाइडर्स, इवन ही कैन हैव मैलिस. तो वो घूंघट निकालो ताकि घर का भी कोई आदमी उस पर बुरी नजर ना रख सके, क्योंकि इट्स बिटवीन द डू एंड द डूअर. तो एक उर्दू का शेर है, मुख्तलिफ चेहरे हैं, अलग अलग चेहरे हैं, औरत जात के, माँ भी है, बहन भी है, बेगम भी है. जिसको चाहे जिस नजर से देख ले, फूल भी है, कांटा भी है, शबनम भी है. सो हियर इज द कर्ता, द डूअर, द अदर पार्टी इज मैन. And that's why our scriptures, Upanishad, Ved have also defined the duties of man. वो आज का टॉपिक नहीं है, वो फिर कभी करेंगे कि पुरुष में क्या गुण होने चाहिए. और वो भी ड्यूटी माँ की है, बिकॉज शी इज द फर्स्ट आचार्य, कि उसने अपने बेटे को क्या सिखाना है. अगर बेटी को दामाद पिक्चर ले जाता है, टूरिज्म के लिए ले जाता है, मेरा दामाद, मेरा बेटा ले जाए बहू को, बीवी का गुलाम है, उसको ले जाता है. So the onus is on the woman of the house again, कि उसने पुरुष को भी कैसे शेप करना है ताकि औरत को रिस्पेक्ट मिलती रहे. So मैं इसको तो नहीं आज लूंगी डिटेल में, बिकॉज ऑलरेडी टाइम इज गॉन. बट ऑल ऑफ यू नो, वी जस्ट रिसाइटेड गायत्री मंत्र एंड इन विच वी सेड तत्सवितुर्वरेण्यम. तुम सविता, सब कुछ क्रिएट करने वाले, सब कुछ देने वाले, शुभ करने वाले, वरेण्यम, तुम वरण करने योग्य हो. यू आर वर्दी ऑफ बीइंग वेडिड. एंड हु इज वर्दी ऑफ बीइंग वेडिड? कि जो मेरी जरूरतें पूरी करे, एक वैश्य की तरह. वैश्य, नॉट वैश्य, वैश्य मीन्स बिजनेसमैन हु कैन अर्न, हु कैन मेक प्रॉफिट्स. Businessman only can help run the country, because if he doesn't give the money to the states, to taxes to the state, how would they buy the armaments to protect the country? So जो मेरी जरूरतें पूरी कर सके बिजनेसमैन की तरह, जो मुझसे गलती होने पर मुझे माफ कर सके ब्राह्मण की तरह, मुझे कुछ नहीं पता तो उसका मुझे ज्ञान दे सके, मुझे समझा सके ब्राह्मण की तरह, और मैं बीमार हो जाऊं या मैं चाइल्ड बर्थ में हूं तो शूद्र की तरह मेरी सेवा कर सके. तो वो ही वर्ण करने योग्य है. और उसके बाद आता है प्रोटेक्टर, जो एक क्षत्रिय की तरह हमेशा मेरी रक्षा के लिए तैयार रहे. श्री राम सब कुछ छोड़ गए, पीत वर्ण वस्त्रों में गए, पर धनुष नहीं छोड़ा. हमने अहिंसा परमो धर्मा का राग गा के अपने अस्त्र छोड़ दिए. कोई हमारे गुरु, कोई हमारी देवियां, कोई हमारे देवता बिना अस्त्र के नहीं है. सो अगर आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो आप किसी की भी नहीं कर सकोगे. सो respect for the woman can only be instilled in the hearts and mind of our children by the examples of parents and elders in our every household. So I can only share what I have learned in my household and in my family is that if you are a man, attempt to understand women, rather cherish and respect the woman in your life. And if you are a woman, accept them as imperfect. Perfect partner कोई नहीं होता, आपको perfect बनना पड़ता है. Sometimes हमारा matrimonial meeting आती है ना, तो वो कहते हैं, oh I'm looking for a perfect husband. तुम तो perfect wife बनो पहले. वो कहाँ से ready-made perfect आ जाएगा? So even if he is imperfect, still you should honor him, respect him, and care for that man in your life. If we do all these things, then our life will be full of divine energy. I think I have covered more than the topic, and thank you very much for your patience and listening to me. Questions के लिए तो कुछ मैंने छोड़ा नहीं, but if you have the questions, I'm here. I hope I have justified the
role, my role and the women's role in Hindu family. And so with that I would like to extend my thanks to you all. आपने कुछ पूछना है? नहीं पूछना नहीं है क्या? Yeah. Thank you, Vibha. Thank you, Vibha. You have explained it very nicely. That was very good, very good. ये किरण जी का विश्वास है वो मेरे से इतना कुछ बुलवा गया. Thank you very much, Vibha Kher. I think you have said a lot and we have learned a lot as well. Thank you. The only thing I will add, one sentence, which when you said housewife, housewife is a very small name for this. Because house is when you buy a property, that is house. It is made by women home. So we should call all the ladies, not housewife, home managers. Homemakers, home managers. Yeah, if you agree with me, just yeah. Okay, thank you very much. And also, I think we have missed one thing, which says if you teach a boy, you teach only an individual person. Yes. But if you teach Yeah, I a wrote it, girl, but I you just you make her aware of and educate her. If you educate her, you educate the whole family, whole society. Okay? And I hope you won't mind that, but I just observe it. Okay? I'm flattered because it's me who wrote it, but I missed it. Okay? Thank you very much. And now I call Atulji to say a few words. Okay? Thank you. ये कह रही थी कि I use the word housewife because this is a common expression. But usually in our family we say homemaker. क्योंकि house और home में वही है. ठीक है? Thank you, Vibha ji. It was amazing, amazing, amazing. I think if I were you, I think I need to give standing ovation, please. That was a wonderful, wonderful. Normal daily. I have heard many speeches. I have heard many times of many scholars, but it was It's every day. everything. But it was so well explained. So well explained. आज की भाषा में आज की नारी को और इसको आपने वेद का जिक्र किया, मनुस्मृति का जिक्र किया, पर आपने रोज की जिंदगी में जो हमारी बातें हैं उसको आपने साथ में लेके और आई उससे मेरे एक बार मम्मी और बुआ जी बैठे हुए थे तो मैंने कहा श्रीमान श्रीमती कहाँ से आए होंगे जो हमने लगाया तो श्री हमारे यहाँ माँ को बोलते हैं, लक्ष्मी जी को बोलते हैं. जो श्री यानी जो श्री का मान करता है, जिसके पास श्रीमती है, जिसके पास मति अच्छी है वही श्रीमती हो सकती है और जिसमें इतनी मति हो, जिसमें ये क्वालिटीज हो वही मति हो सकती, वही श्रीमती हो सकती है, वरना तो ऐसे ही है. और वही श्रीमान हो सकता है जो श्री का मान करे, जो औरत का सम्मान करे. तो विभा जी, थैंक्स अगेन and very nice. It was I was thinking I don't know what we are going to say, but it was amazing. I thought 30 minutes का मैंने timer मिल गया होगा. okay, no, very nice. It was मतलब I could hear to you probably for hours. It was the voice was so balanced or the speech was so clear or it was amazing. I think we couldn't have a better speaker than you, Vivaji. Thank you. पंडित जी मुझे बाद में समझाएंगे, ये आपने ठीक प्रोनाउंस नहीं किया I just have to say that we have already made 4 life members, friends of the family, and also we have 5 annual members. If anybody wants to become a family of friend annually, is £5 fee. If somebody wants to become yearly members, then it's £51 fee. And I hope you all enjoyed it. And I think now I call Panditji to recite a few last mantra, and also after that it will be Aarti. Okay, thank you very much for listening.
Thank you very much. Again, topic was also very nice, and as you hear, Ms. Vibha Keli ji, वो क्या Kale, Vibha Kale, but in English Kale, so that's why I only say English. That's why. Not khel play. Okay, so sorry. Vibha Kale ji explain very well. Okay. So, before mantra, we are slowly forgetting our role. Women, they are forgetting our role when they go to other country and they are adopting to other culture, but we are forgetting. So we have to learn and we have to remember what our scripture have, what the Rishi Muni says. We have to remember that and we accept slowly. And what we are forgetting, this is not good for us, because we are saying we are Vishwaguru. But if we are adopting to other culture, then it means we have less knowledge. How can we become Vishwaguru? That's why you explain very well. Or one more thing, yatra naryastu pujyante ramante tatra devata. It's very good things. आगे का भी है इसका, लेकिन इतने से काम इसलिए चल जाता है कि जोर दिया गया है कि नारियों का विशेष सम्मान करें। नारी सम्मान के ही योग है, क्योंकि नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, नारी से ही प्रकट हुए राम कृष्ण भगवान। नारी के द्वारा ही इतने बड़े बड़े जो परमात्मा है, जिनका कुछ कह नहीं सकते, वो भी नारी के द्वारा ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही साथ ये नारी अपने बच्चों को और समाज को एक नई दिशा देती है। इसलिए जो आपने कहा कि माता गुरु है, क्योंकि माता संस्कार की जननी है। यदि माता संस्कार नहीं देगी तो बच्चों के पास संस्कार नहीं आ पाएंगे। चाणक्य नीति में बहुत अच्छा एक श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु के समान है, वो पिता बैरी के समान है, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता, संस्कार नहीं देता है, और उसका दुष्परिणाम भी दिखता है कि न शोभते सभा मध्य, जैसे हंसों की सभा में बगुला अलग ही दिख जाता है, उसकी कोई योग्यता नहीं होती है। इसी प्रकार माता का अन्य रोलों से सबसे बड़ा रोल ये है कि वो अपने बच्चों को संस्कार दे, अपने बच्चों को शिक्षित करे, साथ ही साथ में अपनी मर्यादाओं में रह करके समाज को जो दिशा निर्देश करना है वो दिशा निर्देश करके एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करे और चरित्र पर विशेष ध्यान रखे। इसी के साथ साथ ये जो हम बात कर रहे थे जी, तो जैसे अतुल जी ने कहा, किरण जी ने कहा कि विवाह ये करती है, डेली हम करती है, वो हम सीख सकते हैं। उस हिसाब से जैसे अभी आपने कहा कि हम दूसरे देशों में आते हैं तो उनकी सभ्यता अपनाना शुरू कर देते हैं, उसके लिए भी मेरे जैसा एग्जाम्पल नहीं होगा। क्योंकि जब आर्य समाज में लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे माँ बाप को तो नहीं देखा पर तुम्हारे संस्कारों से पता चलता है। और मेरी ये जो केएल सरनेम है, इट्स ब्रिटिश सरनेम, मेरी अरेंज्ड मैरिज हुई थी अंग्रेज के साथ। मैं यहाँ पढ़ने आई थी, मैं वापस चली गई, मेरे भाई ने अरेंज की थी तो फिर शादी। तो मैंने तो कॉलेज में भी पढ़ाया, मैंने भी ट्राउजर्स जीन्स एंड टॉप्स पहनी है, बट देयर इज ऑलवेज एक मर्यादा है। तो वो अगर हम अपनी मर्यादा में रह के देखने वाले की नज़र भी मर्यादा में हो और व्यक्ति का
व्यवहार भी मर्यादा में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वी ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूजेस, हम बहाने ढूंढते हैं जी हम इंग्लैंड में आके बाकी सब सीख गए तो पंक्चुअलिटी तो सीखे नहीं, जो सीखने वाली चीज नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो कि पहनावे से बहुत बड़ा फर्क लगता है, बहुत, क्योंकि दो इंद्रियां होती हैं, आंख और कान। पाप सिर्फ और सिर्फ इनसे ही प्रवेश करता है, जैसा हम देखते हैं वैसा ही सीधा हृदय में उतर आता है। हमारी संस्कृति में कभी ऐसा पहनावा नहीं था, दूसरे देशों का देख करके कर रहे हैं, परंतु कुछ लोग हैं ऐसे जो सब कुछ जानते हुए भी, इनके भी उसको जानते हैं कैसा है क्या है, उसके बाद भी अपने पहनावे को, इस देश में भी हम देखते हैं अपने मंदिर में ही लोग आते हैं और हर तरीके के लोग आते हैं, तो अच्छे संस्कारवान जो अपना वो देना चाहते मैसेज, वो अच्छे वस्त्र पहन के भी आते हैं, जो इनके मॉडर्न के साथ में जो होना चाहते, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। से कि जैसे हमारे जैसे कई युद्ध में जाती थी तो नेचुरली वो युद्ध की तरह की ही यूनिफॉर्म पहरावा होगा, पर ये एक नगनता में और डिफरेंट पहरावे में भी तो फर्क है ना। वो बात मैं कर रही थी कि वी शुड, हम मर्यादा ना कहीं भी तोड़े। बॉटम लाइन इज दिस कि किसी भी तरह से अगर हम अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो कहीं भी रहिए आपको बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ये मैं सोच रही थी। युद्ध में भी अगर आप झांसी की रानी की पिक्चर कहीं भी देखी हो तो युद्ध में भी उन्होंने साड़ी का ही वर्ण किया, इवन पायलट कोई हमारे भी यही है, ऐसा कुछ पायलट, नहीं किया। तो बहुत अच्छा टॉपिक रहा और धीरे धीरे ये जहां पर भी YouTube के माध्यम से, फेसबुक, जिन माध्यमों से लोग सुनेंगे सीखेंगे वो आपसे जरूर प्रेरित होंगे। तो इसीलिए उन लोगों का भी आपने बदलने का, अपने कुछ विचारों से उनके यदि विचार बदल जाएं तो इससे अच्छा क्या है। तो क्योंकि जब टॉपिक अच्छा था और स्पीकर भी अच्छा है और सबको सुनने में भी अच्छा लगा, तो इसका मतलब है कि जरूर जो है ना इस प्रोग्राम में कहीं भी कोई ऐसी कमी नहीं रखी। तो इसलिए अब हम फाइनल की ओर चलते हैं कुछ मंत्रों के साथ में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं। हरि ओम। It's very easy. Anybody else want to come on the stage for Aarti? I can do that. You want English or Hindi? The Hindi doesn't. Hindi only?
मुझे आरती वापस कर देना सारे। चलो मासी की दी है। हरी नहीं चाहिए। हेलो हेलो विभा जी, मैं अभी भी उसी मंत्र में हूँ। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर था, अमेजिंग। आ जाइए जो लोग आरती में सम्मिलित हैं। संगीता जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। कैमरे से है कोई बात नहीं, मैं सीन देख। कैमरे के पास आओ आओ इधर खड़े हो जाए। जल्दी बच्चे हाँ जी, आंटी जी एक कैमरे से इधर उधर हो जाए प्लीज। हाँ उधर ही है, कैमरे के आगे नहीं, कैमरे के आगे नहीं, ठीक है। नहीं ठीक है, कैमरे के आगे नहीं है। नहीं ठीक है आंटी, ठीक है। ये कदम माइक को ले लीजिए प्लीज, किसी को। एक और ये आरतियां रखी हैं, प्लीज आरती ले लीजिए। एक और आप ले लीजिए। हाँ आप ले लीजिए, 2 मिनट फिर। हाँ एक नीचे दे देंगे बेशक। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों ने बानी। हमसे तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधियारे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। चिकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जो हमको YouTube पे देखेंगे सबको नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष की बेहद बधाई। आप सबको भगवान करे ये वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। बहुत दुख से निकला है पिछले 1-2 साल, और आज भी संसार में हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, तो संसार में बहुत कष्ट चल रहा है। भगवान करे कि ये सब शांत हो और जल्दी हमें मति आए। तो अब हो गया, अब क्या शांति में। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोल सरस्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे हर